आदाब नाज़रीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सही। उनका ताउन बहुत अच्छा था, तो इट वाज रियली नाइस। तो जब एडमिट हुआ तब बहुत डर लगता था कि कोविड कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ का बिहेवियर ओके, स्टाफ के साथ जैसा था, कभी फील नहीं हुआ कि मैं इसमें था बोल के, मतलब एक कोविड केयर सेंटर में था। इट वाज लाइक अ फैमिली। तो सब लोग ओके, वेरी प्लेजेंट, वेरी नाइस, ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे 21 डेज। ओके, कभी फील नहीं हुआ यहाँ पे। घर को एक्चुअली जाने के बाद यहाँ की याद बहुत आने लगी। एक्चुअली वाज ग्रेट। ओके, मेडिसिन्स वर प्रोवाइडेड। ओके, वी हैड टू बाय सम, दैट्स ग्रेट, but the cooperation was really well. Okay, the food was provided, which was really free, so we had enjoyed. We had a ball actually, to be frank. Okay, time off from work. It's a good. Okay, doctors बहुत cooperative थे. Okay, आते थे राउंड्स पे, तो आके दे यूज्ड टू चेक डेली। ओके, यहाँ पे वॉरियर्स जो थे, कोविड-19 वॉरियर्स, उनका भी बहुत बेहतरीन साथ रहा, क्योंकि उनका साथ रहा और प्रोबेबली ओके जो उनके खिदमत थे, इसीलिए हम लोग रिकवर हैं। और हम लोग की दुआएं उन लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। ओके, नॉट ओनली द वॉरियर्स, ओके, जो बिहाइंड देम, ओके, बिहाइंड द सीन्स बहुत वर्क होता है, तो दैट इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट। तो बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन। When I was a कोविड पेशेंट, इनकी बहन हूँ, तो हमारी पूरी फैमिली थी यहाँ पे। मम्मा, कितने दिन थे? मम्मा, अब्बू, भैया और मैं, 4 लोग थे। 21 डेज। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। जी, मतलब स्टार्टिंग में डर लगा कि कोविड आ गया है, क्या करेंगे, बट दिस प्लेस इज रियली गुड। द पीपल हियर आर वेरी कोऑपरेटिव, द डॉक्टर्स, वॉरियर्स, एंड ऑब्वियसली द पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड दैट, सो इट वाज गुड। जी, ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड वी रिकवर्ड बिकॉज ऑफ दीज पीपल। First, the Lord, the Almighty. After that, these people helped us to make it. मेरा नाम सुफिया दानिया ज़मानिया है। जी, I am just a medical student Okay. of first year. I was being admitted over here third day जब when the Farooqia had been opened. Me, my parents underwent a COVID test. Okay. 28 July, I was tested positive by RT-PCR test. Like we all were panicked totally. My parents were like NH, BB Aisha, Brindavan District Hospital and all. The only what do you tell that? Only solution was given by Dr. Fuzail Ilyas. He just, my father called him up and he just asked him like, what should I do? My daughter is a COVID positive. So he just told, go take her to Farooqia Polytechnic. I am over there. I just came over here. First day I was panicked. Like I was I was totally panicked. Like I did not have any words to tell. Then I had so much of like, I did not speak to any of them over here. Then my parents told, being a medical student, how can you go so weak over here? First day was like, why did I come? Allah, am I going away from this dunya? Yes. Then alhamdulillah, hats off to the department over here, hats off to the warriors, especially the evening and the night warriors over here. Sara ma'am, Fuzail sir, and the other Sara ma'am and Atiya ma'am, many doctors helped. They cooperated so well with us, like each and every time, especially during night times. अगर we would have not worn mask or sanitizer apply नहीं करके हो, तो few warriors used to come and check our saturation and temperature, and they used to tell like, wear up your mask, take care of your precautions. And food was good, and not only food, they also provided us with the midday meals also, snacks, bread, biscuits. it's like a parental feel. Exactly. I believe me or not, the 15th day when I left from here, I was residing in the G3. All my roommates were standing over here. I just had tears in my eyes. I was like, I'm gonna miss this family over here. I just came down over here. My father was standing there. He was like, why, what happened? Why you don't want to leave? I was like, no, I don't know. That was my family. After 14 days of quarantine, when I was at home, I used to cry like hell when I used to be in a room. I was like, I wish I was there only. Like, obviously, when we go back to home, each and everyone would have the fear until and unless we get a negative report. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज फारूखिया कोविड सेंटर है। आज यहाँ क्लोजिंग करको एक हफ्ते से हमें पेशेंट्स यहाँ है सो स्टॉप करा लेते हैं। आज बंद करना का मकसद ये था कि पेशेंट्स की कमी कम होने चलेगी। पेशेंट्स जो एनआर क्षेत्र में इसका मकसद था, एनआर क्षेत्र में जो 3 महीने पहले है, एनआर क्षेत्र में रोज़ को एक 10 से 15 डेथ्स होते थे।
ये डेस्क होते रहने में है सो सब कौम के जो बड़े हैं उन्होंने और कारपोरेटर्स MLA साहब सब मिलकर क्या करें, और कम्युनिटी के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ज़रा हमारे साथ मिलकर नहीं हमें यहाँ 1-2 सेंटर बनाएंगे थे, यहाँ हमें टेस्टिंग सेंटर्स बनाएंगे थे करको सबके एक राय के बनाना, ये बनाए तो हम ना क्या कहते हैं हमारे कौम को भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, यहाँ कॉन्फिडेंस रहता है। और कहा क्या तो सब जने क्या करते थे, डर जाते थे जाने के वास्ते, हॉस्पिटल्स को जाने के वास्ते। वो टाइम का मंजर ऐसा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो मर जाती करको ऐसा आ गया था। तो उन्हें पॉजिटिव आया तो भी पेशेंट कहते घर में रहते थे, 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल को जाते थे, इंतकाल फरमाया जाते थे। तो ये सब रोकने के वास्ते क्या करें, सब मिल को एक DC सर उस टाइम पे DC सर से बैठ को और कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब से बैठ को बात कर नहीं हमें एक सेंटर स्टार्ट करेंगे करको बोल को क्या करें, हमें फर्स्ट करके एक मिनी लॉकडाउन करे वो टेम्पो उदयगिरी में एक मिनी लॉकडाउन करको जहाँ जहाँ डेथ्स हुए थे वो डेथ्स को जो हॉटस्पॉट्स करको हमें क्या करें, एक सराउंडिंग एक 100 मीटर्स के घरान को पूरा हमें एक राउंड अप करें। राउंड अप करवा को पूरे हमें हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो वॉलंटियर्स थे वॉलंटियर्स भी जो ये जो सब कॉर्पोरेटर्स थे उन्होंने सब मिल को एक शुरुआत में क्या करें, एक सर्वे करें घर घर को जाकर जो भी पेशेंट्स हैं जो बखारा से घर में रख ले को चुनो टेस्टिंग कराने से घर में चलते थे, इनको सब ले लेकर को एक जगह को टेस्टिंग करा को क्या करें हमें उनको ले जाको ऐसे ये कोविड जो फारूक है और एक अंडोलस कर को एक राजू नगर में एक शुरुआत में करें। तो ये 2 जगह में भी कह रहे पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू करें वहाँ। तो इसमें है जो पेशेंट्स में ये जो ये फारूक है जो है पर्टिकुलर फारूक है में इतना मशहूर होगा कि जो भी हमारे गवर्नमेंट सेटअप से CCC जो चला रही है, हमें गवर्नमेंट के कोविड केयर सेंटर्स चला रहे हैं, उसमें से भी ये फारूक है सब बहुत ही फेमस हो गया। तो ये पूरे स्टेट में एक मिसाल हो गई है कि कई साल को बोले तो एक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक ये है सब कौम की तरफ से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ है, सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ से हुआ है। तो इसमें है सो क्या को बोले तो कौम का जो पैसा था वो भी लग गया, साथ में है सो हमारे जो इधर के जो एरिया के कौम में थी उनको भी क्या है कि कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, नहीं हमें यहाँ गए तो अच्छे होते हैं करको। और यहाँ डॉक्टर्स भी जो थे बहुत ही अच्छा कदम जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे उन्होंने तो बहुत ही अच्छा उनके साथ ट्रीटमेंट सब करे। और साथ में ख़ास करके ये वॉरियर्स जो उनको ये BCD भी मालूम नहीं था, ये कोरोना के बारे में मालूम नहीं था, उनको मेडिकल फील्ड क्या कर को मालूम नहीं थी इसमें। तो उन्होंने सो वो सब बाद में मेरे को क्या करे ट्रेनिंग लिया, हमें सब उनको एक ट्रेनिंग दिया। उनको ट्रेनिंग देने के बाद में उनको हमें क्या करे फर्स्ट ये स्टार्ट करें इनको यहाँ ड्यूटीज़ डालने के वास्ते इन्हों बहुत ईमानदारी से काम करे। और पेशेंट हैं जो भी जाते थे बहुत खुश हो जाते थे। और यहाँ से इसने बाजू जो भी बाजू तालुका से नहीं तो बाजू डिस्ट्रिक्ट से भी आना शुरू किया। बेंगलुरु से भी एक फैमिली से आपको यहाँ क्वारंटाइन होकर जाको हैं, टुमकुर से, चित्तौड़गढ़ से, शिवमोगा से, बहुत जगह से आपको यहाँ है सो क्वारंटाइन होकर गए। और सब है सो क्या भी कैजुअलिटीज नहीं सो अच्छे होको जाको ही। और एक ज़रा है सो ज़रा बैड होको जाती है वो तो नेचुरल जाता, वो एक ज़रा परसेंटेज रहती ही छो वो पेशेंट से दूसरी जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर हो छो वो होते ही छो। और दूसरा से भी हमें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट करे, जो खाने का है वो सब यहाँ वॉलंटियर्स की तरफ से यहाँ इंतज़ाम था। और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ये कॉर्पोरेटर्स का, जो ये कौम के जो भी लीडर्स हैं, हमारे MLA साहब का, और ख़ास करके हमारे डॉक्टर्स और ये प्राइवेट डॉक्टर्स और हमारे वॉलंटियर्स बहुत ही मेहनत करी हैं। और इसी कॉर्पोरेशन हमारे डिपार्टमेंट से भी है सो ज़रा डॉक्टर्स को सब हमें यहाँ डाल लेते हैं, उनका भी यहाँ टाइम लग है। सबका शुक्रिया अदा करते मैं हमें इस सेंटर्स को अब ऑफिशियली मस्जिद है, यासीन मस्जिद है और यहाँ हमारे निमरा मस्जिद है, उदाप मस्जिद, सब ये मस्जिद के पूरे भी जितने भी मस्जिद में है वहाँ से सब ये डोनेशन कलेक्ट हुआ। बाद में ऐसे खुबा कोविड सेंटर कर को बनाए, NR कोविड सेंटर कर को बनाए, उन्होंने सब डोनेशंस लेकर बाकायदा है सो ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी से इन्होंने सब है सो जिससे से उन्होंने है सो डॉक्टर्स को अपॉइंट करे थे और डॉक्टर्स को वॉलंटियर्स को सब अपॉइंट कर को है सो वो कौम के पैसे से। और बहुत सारा यहाँ भी है सो जो NIVs जो वेंटिलेटर्स जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स हैं वो भी 1-4 डोनेट कर को दिया। और यहाँ है सो खाली कोविड केयर सेंटर कर को नहीं चले आए, यहाँ एक है सो एक मिनी हॉस्पिटल के जैसा चला, एक मॉडरेट केसेस को भी जो यहाँ है सो ट्रीटमेंट मिलता था। यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन तला का भी यहाँ सो यहाँ इंजेक्शन देते थे। तो ये खास करके यूजुअली हमें क्या करते थे, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमें देती सो, लेकिन ये इंजेक्शन है सो यहाँ भी देखो है सो क्रिटिकल पेशेंट्स को भी यहाँ मैनेज करने बहुत अच्छा मैनेज करे। यहाँ हमारे डॉक्टर नूरुद्दीन है, फिजिशियन है, वो बहुत अच्छा मैनेज करे। हमारे एक जुहेब
इंटेंसिविस्ट और अलन सर से भी बहुत सपोर्ट मिला यहाँ इन्वेस्टिगेशन से, और सर साथ में है सो एम्बुलेंस सर्विसेज से, और उनका भी बहुत सपोर्ट मिला यहाँ सबके। सेना क्षेत्र अभी क्या है बोला तो हमें ये क्लोज करने का, तो इसका मकसद ही है क्या क्लोज करने का। इस सेंटर्स में क्या है डेथ रेट्स भी कम हो गई हैं। अब हमें पहले ऐसा डेली डेथ्स इधर ये मोहल्ले से होते थे, अब ये मोहल्ले अगर होते एनआर क्षेत्र से ऐसे के 1 का 2 का 1-2 दिन को 3 दिन को ऐसा डेथ हो नहीं हुआ। वो केस फर्टिलिटी रेट भी कम हो गया है और पॉजिटिव रेट भी कम हो गया है। अब जैसे हम यहाँ एमपी थिएटर में जो खुबा सेंटर कर को यहाँ टेस्टिंग सेंटर बना कोई, वहाँ एक 100 टेस्ट जनक टेस्ट करे तो एक 30 से न तो 40 पॉजिटिव आ जाते फर्स्ट। अब हम ना है सो 1-2 0 आ रही, कल से और पेशेंट में भी कम हो गया और 0 भी आ रही, हम ना पॉजिटिव रेट भी कम हो गया है। और वैसा हमें क्या करके बोला तो 1-2 पेशेंट के वास्ते इतना मैन पावर इतना ये है सो चलाने के वास्ते अब सबका होम का पैसा हम चुके वेस्ट भी नहीं कर सकते। उसके वास्ते क्या करें गवर्नमेंट की जो अभी बड़ी हॉस्पिटल है वो ऑलरेडी रेडी करको छोड़ को कॉर्पोरेशन से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से वो रेडी करको है बेको ना, तो वो अगर पेशेंट्स कहते बढ़े तो इन फ्यूचर वो हमें एक्टिवेट कर ले को वो हमें रन करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ स्कूल भी स्टार्ट होने वाले, कॉलेज भी स्टार्ट होने वाले, तो ये भी है सो हमें इनको छोड़ को देना पड़ता है। और जुलाई में सेकेंड वेव मैसूर में पीक शुरू हुई और मुझे याद है जुलाई 24th वाज द डे व्हेन वी स्टार्टेड दिस सेंटर। आज नवंबर 5 है, लगभग 100-102 दिन का अरसा। ये 100 दिन के अरसे में यहाँ वी हैव ट्रीटेड समथिंग लाइक 600-700 पेशेंट्स। अच्छा। तो अल्लाह का करम, बहुत सारे लोगों को यहाँ बिकॉज डेथ्स भी बहुत थे इधर एरिया में और मॉर्बिडिटी बहुत थी, हॉस्पिटल एडमिशन्स को बेड्स नहीं मिल रहे थे लोगों को, वो हालत बहुत ख़राब थी और जहाँ मिल रहे थे वहाँ लोगों को अफोर्ड करने की ताकत नहीं थी। बहुत ज़्यादा गुर्बत के भी मसाइल बहुत थे। तो वो सिलसिले में देख ले को एक मामूली छोटे लेवल के पैमाने को प्लानिंग शुरू करे, अल्लाह उसे ले लगा कि यहाँ तक अल्लाह ले लगाया। कुछ चंद लोगों की डिस्कशन से शुरू हुआ सो ये बहुत सौों के लोगों की मेहनत, अल्लाह उनका पसीना इसमें लगाया। वो क्या हुआ, उनके पसीने की बरकत से अल्लाह आज बहुत सारे लोगों को सेहतमंद कराया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से आए सो पेशेंट अच्छे हुए वो अलग बात है, लेकिन हमारे कौम में एक जज्बा पैदा हुआ कि हो ये एक बहुत बड़ा मसला है, कोरोना का एक बहुत बड़ा मसला है, इसे हमें सीरियसली लेना, हमें हमारे घरों की हिफाजत कर लेना, मास्क, इसका सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ों का ख्याल करना, पाकी सफाई का ख्याल करना। जो पहले कमी थी हमारे मोहल्लात में, उससे अब अल्लाह का करम एक हद तक पाकी सफाई का भी एहतमाम होकर है। और ये सेंटर खुसूसी ये क्योंकि ये पहला सेंटर था जो हमने स्टार्ट करे, उसके बाद एंडलस शुरू हुआ, उसके बाद दूसरी जगह पर भी हुआ। यहाँ के सेंटर की बरकत से अल्लाह खुदल बहुत सारे लोगों को, मैं खुसूसी तौर पर यहाँ के हर एक कारकुन जो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर से लेकर जो वॉरियर्स थे, हर एक जनिया कारकुन को सबसे पहले बाद मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी मेहनत को अल्लाह कबूल करे, उनको यहाँ तक उनकी काविशों को अल्लाह यह करा। हकीकतन उनकी मेहनत थी, उनका पसीना था, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों को भला हुआ, हमारे कौम को, हमारे मोहल्लात को एक हिफाजत हुई। सबके दिलों में एक क्या ख्याल आया, तो एक भरोसा क्या है कि अब नहीं हमारे एक मोहल्ले में ट्रीटमेंट होता। वो एक जो हिम्मत कौम के अंदर पैदा हुआ, वो जज्बा पैदा हुआ, वो इन लोगों की मेहनत की वजह से है। आज अल्लाह का करम, जब शुरुआत हुई तब भी मैं आया था, आज जब इख्तिताम को है तब भी मैं हूँ। मुझे बहुत सुकून, खुशी और मसरत का ये हमारे मुनव्वर साहब की क़यादत में ये हमारे यहाँ की जो पूरी टीम थी, डॉक्टर सारा, डॉक्टर ज़ुहैब, डॉक्टर सुभान साहब, हमारे फुजैल भाई, जितने जने भी थे, जावेद साहब हो, इन सब की मेहनतों को अल्लाह कबूल करे और इसका जज़ा दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। और आखिर में मैं लोगों को फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, कोरोना का अभी कहर ख़त्म नहीं हुआ, यह आजमाइश और जारी व सारी है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा इसमें ज़ोर कमी हो गया है, लेकिन अभी भी है। आप लोग इस चीज़ का ख्याल कर रखें कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड क्लीनिंग का ख्याल रखें। और दूसरी बात, ये ख़त्म हो रहा है, ये सेंटर फिनिश हो रहा है, इससे लोगों को किसी चीज़ तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज अल्लाह ने हमें और ज़्यादा ताकत अता की है और ज़्यादा असबाब हैं। ये सेंटर हुआ, इसके आगे अगर ज़रूरत पड़ी इससे और 4 गुना सेंटर्स बनाने की अल्लाह ताकत दिया। वो ज़माने में जब 4 महीने पहले जब शुरुआत हुई तब हमने ख्याल भी नहीं था ये हमें क्या कर सकती घर को, लेकिन आज एक अल्लाह एक अच्छे ऐसे मुकाम पर पहुँचाया है, हमारे इसे ख्यालात को और हमारी ताकतों को और अल्लाह इतना बढ़ाया। ज़रूरत पड़ी इसके 10 सेंटर्स और खड़ा सकती। इंशाअल्लाह कौम को किसी तरीके से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दुआ करें, इन लोगों के हक में दुआ करें जो मेहनत किए हैं। इनकी मेहनतों को बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये सब लोग जो साफ दिल से अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे से जो करे, अल्लाह उनकी उस मेहनत को कबूल करे और अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। दुनिया और आखिरत दोनों में उनको इसका जज़ा अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಮುನಾವರ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. GB ಪಾಳ್ಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರೂಖಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-3 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ, PP ಕಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನೂ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಕೊರೋನಾ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಮಧ್ಯಂತರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಇನ್ನೂ ಅಭಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಗ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೈರಸ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಬರೋದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್, UK ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೈರಸ್ ಅದು. ಈಗ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಏನೋ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಇದೇ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ 3 months ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್. ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೈರಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಜನ ಓಡಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು a great job so far, particularly on volunteers. They deserve all the credit, basically. Okay, volunteers and all our nursing staff. Then comes our doctors. Yeah. Okay, it was a great help for the community. Okay. We could avoid the spread among the entire population by admitting approximately around 1,000 and more or less patients. We avoided the spread among 2 lakh population. Okay. So it has been a commendable job, and hopefully, as Dr. Munawar said, this will be the end of this trend, and we don't see any second wave. Hopefully, if government takes any precautions and prevents this international spread, we will be able to see the end of this thing. Okay? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सारा। कौम की मदद करने के जज्बे से जो शुरुआत हुई थी वो माशाल्लाह बढ़ के माशरे की मदद हो गई। यहाँ पे हर किस्म का इंसान आया, हर तबके का इंसान आया। यहाँ पे लाइक गरीब भी आए, यहाँ पे बहुत लाइक हाईली एजुकेटेड लोग भी आए, आराम से आए रहे। और जो मेन जो खौफ था, जो खौफजदा माहौल था एंड कोविड के आइसोलेशन के बारे में कि घरों में आराम रहेगा, बाहर जाके नहीं, हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे, एंड जो डर था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह का सभी, वो दूर हो गया। एंड लोगों में एक जज्बा आया कि चलो लेट अस फेस इट, हम इस चीज़ को फेस करेंगे करके। तो फारूखिया कोविड सेंटर 105th डे है आज माशाल्लाह। जैसे डॉक्टर नूरुद्दीन सर हमारे टीम हेड बोले, वैसे ही मैं भी कहूँगी सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी की शुक्रगुजार हूँ तो हमारे वॉलंटियर्स, नर्सिंग स्टाफ, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बाहर थे और हमारी ऑक्सीजन टीम, ये सब लोग बहुत बहुत मेहनत करके हैं दिन रात। किसी को खाने का होश नहीं था, किसी को वक्त का होश नहीं था, किसी ने भी ड्यूटी लाइक 2 घंटे की है, 6 घंटे की, 8 घंटे की नहीं की, सब लोगों ने दिलो जान से ड्यूटी की है। और पेशेंट्स के साथ जो अटैचमेंट, जो मोहब्बत, जो लाइक वो एक्सपीरियंस है, दैट इज़ इनएक्सप्रेसिबल। हमें शायद वैसा नहीं हो, और हम ऐसे हालात में हैं कि हम कह भी नहीं सकते कि चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ये नहीं। हम चाहते हैं कि वबा यहीं पे ख़त्म हो जाए बिल्कुल, और कोई इस चीज़ के साथ लाइक ऐसा ख़तरनाक एक्सपीरियंस ना हो। थोड़े पेशेंट्स हमारे लाइक शिफ्ट करना पड़ा और हाथ से निकल गए। वो पेशेंट्स हैं जो बहुत बहुत लेट रिपोर्ट किए, जब सांस की तकलीफ हो गई, डिसैचुरेट हो गए। जितने भी पेशेंट्स वक्त पे आके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज होके है, हर कौम से आके है, हर
कम्युनिटी से आके हैं और बहुत खुश होकर जाके हैं। एक बहुत दिल में एक फैमिली जैसे माहौल बन गया था। डॉक्टर नयाज एंड डॉक्टर शिराज का बहुत सपोर्ट रहा। नूरुद्दीन सर के विजिट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। डॉक्टर फुजैल के विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे। मेरी टीम जो डॉक्टर जावेद एंड डॉक्टर सुभान रहे, बहुत ज़बरदस्त हमारा वक्त डेडिकेटेडली गुजरा है। एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस, बहुत बेहतरीन जज्बा, एक सुकून लेके जा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों के काम आ सकें और उनकी दुआएं ले सकें। इतनी दुआएं निकली हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी इस सेंटर में आती हूँ, कोई तो करामात होगी, कुछ तो फरिश्तों का असर होगा कि यहाँ पे इतना सुकून है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरी इल्तिजा लोगों से ये है कि वबा ख़त्म होके नहीं है, सिर्फ एक सेंटर क्लोज हो रहा है। वबा ख़त्म होके नहीं है, वबा है, वबा रहेगी। हमें बहुत एहतियात बरतना है। आपको बुखार आया, खांसी हुई, थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करें। फीमेल्स तो आपको तो पता है ना कि कैसे है। मैसूर में आजकल जज्बा चला है, CAA NRC के बाद वो द वेव ऑफ रेवोल्यूशन निकला है, तो हर जगह फीमेल्स ही हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअली दोनों तरफ से मेल्स एंड फीमेल्स इक्वल थे। बट यस, हमारे लेडीज़ वॉरियर्स को देख के बहुत खुशी होती है कि बच्चे आगे बढ़ के आए, नाइट ड्यूटीज़ के लिए पीछे नहीं हटे, किसी किस्म का इन्हें ये नहीं था, ये खिदमत थी, खिदमत के जज्बे से आए और उस जज्बे से गए। और हमारी जो बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी जो बाहर से हमें सपोर्ट किए, हमने तो अंदर रेड जोन में बहुत मेहनत से काम किया, बट बाहर वालों को भी हमारा बहुत सपोर्ट रहा। जैसे हमारे असरार हैं, हमारे रफ़त साहब हैं, सादिक हैं, इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तहे दिल से सबका शुक्रिया। खासकर आज याद करती हूँ DC अभिराम शंकर, जो मेरे साथ उनका रब्ता बहुत अच्छा रहा है। जाने के बाद भी वो बहुत फिक्रमंद रहे, फारूकिया कोविड सेंटर के बारे में मालूमात पूछते रहे। डॉक्टर शिराज, डॉक्टर नयाज, एक्स मेयर हमारे अयूब साहब और हमारे MLA साहब, इन लोगों की मेहनत और सारे कौम के जितने भी उलमा थे और जितने भी जिम्मेदार थे, इन लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि इनकी वजह से हमें खिदमत करने का मौका मिला, सवाब हासिल करने का मौका मिला। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैसूर में एक बहुत अहम और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा कारामद रहा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा कि पूरी तरह फुल ब्लोन पैंडमिक स्टार्ट होने से पहले जो कम्युनिटी के लोग साथ मिलकर बैठे, पूरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाले साथ आए और पूरी तरह फ्यूचर प्लानिंग के साथ वी वर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ द पैंडमिक। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह दूसरे मकामात पर जहाँ भी देखा जाता है प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बाद स्टेप उठाए जाते थे, लेकिन मैसूर एक शहर ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही अरेंजमेंट हो गए। पहली बार शायद कोविड सेंटर ऐसा सेटअप हुआ जो पूरी तरह कम्युनिटी मैनेज हुआ। कम्युनिटी के डॉक्टर्स, कम्युनिटी के वॉलंटियर्स और रिलेशंस पूरे साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह 105 डेज तक ये निज़ाम चलाए हैं। वेरी वेरी कमेंडेबल अल्हम्दुलिल्लाह एंड रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल द पेशेंट्स। जितने लोग यहाँ पर निज़ाम चलाने के लिए डोनेट किए हैं, प्रॉब्ली सेवरल लाख, उससे 10 टाइम्स उतना फ़ायदा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया है। फाइनेंशियली हो या इतना दिलाने के एतबार से हो या ट्रीटमेंट के एतबार से हो, कहीं और प्राइवेट में अगर ये लोग ट्रीटमेंट करवाते तो इससे 10 टाइम्स ज़्यादा खर्चा ज़्यादा खर्चा आता। बल्कि उससे ज़्यादा बड़ी बात परेशानी का आलम जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया इस सेंटर्स के शुरू होने के बाद। तो इट वॉज अ वेरी बोल्ड स्टेप, वेरी फार साइटेड स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ ये है कि आगे भी हर तरह के मसाइल में, सिर्फ हेल्थ के मसाइल में नहीं, हर तरह के मसाइल में पूरे कम्युनिटी के सामने रखते हुए हर इदारे वाले मिलकर अगर काम करेंगे तो इसी तरह इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर रिजल्ट। असल में कोई भी रेस्पिरेटरी पैंडमिक जो होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट स्लो, हैज़ ए पीक, कम्स डाउन। सब जगह इसी तरह होता है, सब जगह 3 मंथ्स तक चल रहा है। द बिगेस्ट वरी, द बिगेस्ट फैक्टर विच वी नीड टू लुक इनटू इज री इन्फेक्शन। यानी एक बार इन्फेक्शन होने के बाद फिर से इन्फेक्शन सेम आदमी को हो सकता है, नहीं हो सकता। एक वो, दूसरा व्हाट इज़ द कॉज फॉर द सेकेंड पीक इन ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। तो 4-6 महीने के बाद जो सेकेंड पीक स्टार्ट हो रहा है, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। फिर वी हैव टू बी ऑन द लुकआउट, वी हैव टू बी केयरफुल। People have to follow the norms of distancing and personal protections for the next probably another 3 to 4 months. If there is no second peak, then nothing to worry. Inshallah, gradually settle down हो जाएगा. It will become one of the other diseases which are already prevalent. डॉक्टर फुजैल, बस आखिरी सवाल, लोगों में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, क्या कोविड जो कोरोना वायरस है वो क्या रिपीट हो सकता है? That is the biggest question facing the medical fraternity. वो
एग्जैक्टली मालूम होने के लिए प्रॉपर स्टडीज होना विच विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months टाइम। अच्छा अच्छा सो राइट नाउ देयर आर एनेक्डोटल केसेस, यहाँ थोड़े हुए, यहाँ 1 2 4 हुए, यहाँ 2 4 हुए हैं। हाँ जी। तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर वो गारंटी नहीं है, हो सकता है। अब कितने लोगों को होता है, कितना एंटीबॉडी टाइटर रहा तो नहीं होता, दैट इज मैटर ऑफ स्टडी, रिसर्च चले को है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स 95% लोगों में जो है एक अच्छा अवेयरनेस आया है, जबकि 2 सेंटरों से हांडलस और फारूकिया से लेकर जो है 105 डेज जो कम्प्लीट हुआ आज को, और आज भी जो वेंड अप है फारूकिया का, जिससे बहुत इत्मीनान है शहर मैसूर वालों को, और बाजू के डिस्ट्रिक्ट हो या ताल्लुक से रहो लोगों में जो है एक अच्छा एक वबा का डर भी निकला है, और इस वबा से बच के भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छा जैसे पेंडेमिक जो डॉक्टर फजल बता रहे थे, जैसे पेंडेमिक 105 दिन पहले जो फिज़ा था, लोगों में एक डर का माहौल था, जब इमीडिएट एज वेल एज सुन जैसे 2 सेंटर्स खुले, जिसकी मेहनत जो बताते हैं कि अनार क्षेत्र के जो MLA साहब तनवीर सेठ साहब रहो, हमारे अयूब साहब रहो, चांद साहब, सासिफ भाई, इब्राहिम से, हर लोगों का जो है एक मेहनत थी, एक वबा को जो है डर निकालने का एक इनिशिएट लिए थे, जिससे जो जैसा फजल साहब बता रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है इस क्षेत्र के खासकर जो है इस डर से जो है मुतमईन है, निकले हैं, बाहर निकले हुए हैं। और जैसे जैसे बताया जा रहा है कि केसेस भी जो है बहुत कम आ गए, जिसकी वजह से जो है वेंड अप करना पड़ा, 1 वीक पहले जो है अंडरलेस भी वेंड अप करना पड़ा। तो सबकी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से जो है ये वबा का डर निकला है, मैं बताऊँ। शुक्रिया सर।